Sushmita, can we start now? Yes, ma'am. Yes. So the name of our paper is MEG 16. Yeah. Sushmita, are you there? Yes, ma'am. Sushmita, do you know the syllabus of MEG 16? Oh, ma'am, can you please repeat? Do you know the syllabus of your MEG 16? This is a new topic, na? Yes, ma'am. I have. Yes, ma'am. I It have the is syllabus regarding in my hand. okay. It is regarding about folklore, folk literature. This is Yes, all ma'am. about, na? Yes, ma'am. So we are having a very huge syllabus of this paper. We are having, I think, 7 blocks: folk Yes, ma'am. literature, identity, Yes, folk ma'am. narratives, myths, legends, tales, and then we are having folk tales of A.K. Ramanuja, motifs, his work, legends. So now we are going to start with the word folklore, folk literature, its origin, its qualities, its characteristics. Today we will cover this narrative. So what do you mean by the term folklore? folklore, folk लिटरेचर जो है हमारा, दिस इज बिल्कुल सेम है. अगर एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता Yes, ma'am. है कि व्हाट डू यू मीन बाय folklore, folk literature, folk का क्या मतलब होता है? Yes, इट इज रिगार्डिंग टू, इट इज रिलेटेड टू ma'am. पर्टिकुलर रीजन, Traditions. Okay. ट्रेडिशनल पर्टिकुलर रीजन के. Yes, ma'am. फोकलोर, फोक का मतलब हो गया हमारे एक लोक एरिया के, लोर का मतलब लोकल गीत, हमारा लिटरेचर हो गया. रीजनल लिटरेचर जिसे हम कहेंगे, which varies from state to state, from culture to culture, from tradition to tradition, from custom to custom, from people to people, it varies. उसे Yes, हम ma'am. कहते हैं folklore, folk literature. तो इसका आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, इसके पॉइंट्स बनाएंगे. दिस इज अवर न्यू टॉपिक. तो हम देखते हैं कि इसको बिफोर 19th century इट इज अ डेड कल्चर. We don't know about folklore, folk literature. We are not having trend. We are not having so much classical literature of this folklore or folklore. जैसे हमने एरिस्टोटल पढ़ा था, प्लेटो पढ़ा था, हॉरेस पढ़ा था, उसका हमारे पास कुछ इसका पूरी बैकग्राउंड नहीं है. इट केम फ्रॉम 19th century. सो आप इसका ओरिजिन लिखेंगे. So after 19th century, scholars became serious, and this term was originated from Europe, and then it became flourish in Germany. So its origin is from Europe, and date हमारी कौन सी है? It started from 19th century, and after Europe it get flourished in Germany. तो फोकलोर मटेरियल आप लिखेंगे, फोकलोर मटेरियल, फोकलोर मटेरियल. फोकलोर, फोक का मतलब हो गया हमारे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक लिटरेचर, लोक नाटक, लोक डांस, हम सब ये पढ़ेंगे. फोक का मतलब आप यही समझेंगे हमारा रीजनल से, लोर का मतलब गीत. तो फोकलोर एंड फोक लिटरेचर आर बोथ द सेम टर्म्स. तो अब मैं आपसे बोल रही हूँ फोकलोर. फोकलोर के बीच में हम क्या लेंगे, आप वो लिखेंगी. सुष्मिता, आर यू मेकिंग नोट्स? सुष्मिता, सुष्मिता, आर यू देयर? सुष्मिता,
सुष्मिता, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुष्मिता, I think she is not there. मैडम हो I think सकता है she is कि वहाँ not पे there, sir. कोई नेटवर्क इशू है। हाँ, नहीं, हाँ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं मैम वो। हाँ जी। Sushmita, are you there? Yes, ma'am. Sushmita, Yes, ma'am. where Yes, are ma'am. you? Have you listened some? Ma'am, your voice is not clear. For a while. I am going to some other place. No? लाइट ऑफ कर दो, बाल्टी बंद कर दो। Sushmita, are you notes of this paper? Yes, ma'am. हाँ, तो अब मैं जो आपको लिखवाऊंगी ना, कुछ थोड़ा आप उसके पॉइंट्स वगैरह नोट कर लीजिए, Okay, क्योंकि ये ma'am. मटेरियल बाहर भी कहीं मुझे भी नहीं मिला, मतलब कुछ नोट्स टाइप में मैंने बनाया है, तो इट इज इजी फॉर यू इफ यू राइट सम हेडिंग्स और पॉइंट्स। Okay, ma'am. तो आप सबसे पहले लिखेंगी फोकलोर। फोकलोर का Okay, मटेरियल ma'am. क्या होता है? विच थिंग्स वी इंक्लूड इन फोकलोर? So folklore material is available in various forms और which includes, मतलब फोकलोर का मटेरियल, फोकलोर किस फॉर्म में अवेलेबल है, क्या होता क्या है फोकलोर? आप इसका लिखेंगे फॉकटेल्स। फोकलोर इंक्लूड्स फॉकटेल्स। फॉक का मतलब हो गया लोक, टेल्स का मतलब हो गया कहानियां, लोक कहानियां। देन फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स का मतलब हो गया हमारे लोकगीत। एंड ट्रेडिशनल कस्टम्स। क्लियर हो गई है आपको बातें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोकलोर इंक्लूड्स फोक टेल्स, टेल्स का मतलब हो गया कहानियां, देन इट इंक्लूड्स फोक सॉन्ग्स, हमारे लोकगीत हो गए, एंड देन ट्रेडिशनल कस्टम्स, जो हमारे पुराने रीति व रिवाज चले आ रहे हैं, उसे हम कहेंगे फोक कस्टम्स। तो आपको मैंने बताया है बिफोर 19th सेंचुरी दिस कस्टम वाज डेड, एंड आफ्टर 19th सेंचुरी इट बिकेम इन ट्रेडिशन, इट बिकेम इन एग्जिस्टेंस। तो आगे आप इसका और अभी लिखेंगी मीनिंग, राइट डाउन। फोक लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ, folk literature is associated with rural peasant folk। इसकी डेफिनेशन आई एम नरेटिंग। folk लिटरेचर, देखो हमारा जो ये फोकलोर है, हमारी फोक टेल्स हैं, हमारे फोक्स, ये गीत हैं, हमारे फोकलोर हैं, इसे ही हमने अपना लिटरेचर बना दिया है। लिटरेचर में क्या होता है हमारा? पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, प्लेस, ये सब होता है ना हमारा लिटरेचर में। तो ये हमारा पूरा का पूरा वी आर सेइंग इट एज अ फोक लिटरेचर। तो फोक लिटरेचर हमारा क्या क्या लेकर बैठा है अपने आप में? फोकलोर लेकर बैठा है, फोक सॉन्ग्स लेकर बैठा हुआ है, ट्रेडिशनल कस्टम्स लेकर बैठा हुआ है। क्लियर हो रही है बात आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दे ऑल आर सिनोनिमस। इसकी बिग कहने का क्या मतलब है, जो हमारा फोक लिटरेचर है इट इज एन अम्ब्रेला टर्म। Okay. तो फोक लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ रूरल पीजेंट फोक। रूरल का मतलब हो गया देहाती, पीजेंट कौन होते हैं? Peasants are, ma'am. PEASANT। फॉक का मतलब हो गया लोग, पीजेंट का मतलब हो गया हमारे फार्मर्स।
Yes, ma'am. Farmers. हमारी वर्किंग क्लास, Yes, ma'am. लेबर क्लास जिसे हम कहते हैं, छोटे लेवल के जो लोग होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, उसे कहते हैं। तो जो हमारा फोक लिटरेचर है, ये नहीं है कि हम इसमें एलीट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल एसोसिएट है किससे, रूरल, रूरल का मतलब हो गया गांव वाले, और पीजेंट फोक के साथ। Yes. पीपल, हाँ आप आगे लिखिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीपल्स लिटरेचर, मतलब लोगों का लिटरेचर है ये। कोई इसमें हम अपना शेक्सपियर नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें अपना बेन जॉनसन नहीं पढ़ रहे हैं, सैमुअल जॉनसन नहीं पढ़ रहे हैं, हॉरेस नहीं पढ़ रहे हैं, प्लेटो की क्लाम थ्योरीज नहीं पढ़ रहे हैं, आइए रिचर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक लोगों के द्वारा बनाया गया ही एक उनका कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में हमें पता चलता है। बस सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है ये। इसके बाद हमारे सिलेबस में हमें ये एमपी साइड का और हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया का हम पढ़ेंगे, अपनी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल कास्ट वगैरह के क्या कस्टम्स हैं, उनके क्या डांसेस हैं, क्या उनका लिटरेचर है। तो थोड़ा सा एस्पेक्ट हमारा वो भी है। तो अभी तो हमारा जस्ट स्टार्टिंग है। तो आपको पेपर में जरूर सबसे पहले क्वेश्चन तो यही मिलेगा, डिफाइन फोक लिटरेचर, या फोकलोर से आप क्या समझते हैं, फोक टेल्स क्या होती हैं, आप इसका मीनिंग बताइए, फिर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो तभी मैं इसको थोड़ा आराम से करवा रही हूँ, क्योंकि यही आपका स्टार्टिंग है। सो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दिस ओरिजिन, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, हमारे पीपल का लिटरेचर है, पीपल्स लिटरेचर, लोगों के द्वारा बनाया गया है और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही है, उसे ही हम कहते हैं अपना फोक लिटरेचर, फोकलोर। एंड हेंस कॉमन फैक्टर हेयर आर, मतलब किससे डील करता है ये, एंड हेंस कॉमन फैक्टर हेयर आर ऑक्यूपेशन। अब आपने देखा होगा ये हमारा इधर ये जब करते हैं, इधर हम अपनी जब हमारी कल्टीवेशन ये करते हैं, इधर हम अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं बैसाखी पर पंजाब में, तो हम इसको बैसाखी कहते हैं, जब किसान अपनी फसल को वो उसको हार्वेस्ट करता है। Yes, ma'am. तो वी कॉल इट हियर इन पंजाब ऐसे बैसाखी। Yes. और आप इधर चले जाओ साउथ के एरिया में, तो कोई इसे बिहू कहता है, उड़ीसा में कुछ और टर्म्स हैं। मतलब हर एक स्टेट का अपना अलग अलग वो है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कस्टम है, ट्रेडिशन है, कुछ सॉन्ग्स हैं उनके, वी सिंग सॉन्ग एट दैट टाइम, उसे सॉन्ग तो नहीं हम कहेंगे, फोकलोर कहेंगे। तो ये कहने का मतलब है, तो ये जो हमारा फोकलोर है, फोक लिटरेचर है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, हम किससे डील कर रहे हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से। कोई नया हमने बिजनेस चलाया, मैंने हार्वेस्टिंग का आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है पंजाब का, हरियाणा में उसे कुछ और हम बैसाखी ही कहते हैं, पंजाब में हम उसे प्रॉपर टर्म पंजाब में बैसाखी की है, और बिहू वगैरह इधर कहा जाता है, इधर उड़ीसा वगैरह साइड में चले जाओ, और इधर पोंगल कहते हैं हम साउथ में। Yes, ma'am. ये आप साउथ, ये आप सर्च करना, बहुत सारे आपको इसके वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे असम में किसी और टर्म से ऑरिजिनेट करते हैं। तो वही कहने का मतलब है, हम किसी के रिलीजन से करते हैं। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हो गया, हम किससे डील करते हैं, ऑक्यूपेशन से करते हैं, रिलीजन से करते हैं, एक धर्म के अकॉर्डिंग भी होते हैं हमारे फोकलोर, हमारा फोक लिटरेचर। रिलीजन, हम कहते नहीं है कि हम शादियों में कई लोग अपना यही संगीत गाते हैं, हमारा तो Yes, पर्टिकुलर ma'am. यही सॉन्ग है, तो उसे हम कहते हैं, हमारा रिलीजन हमारा यही कहता है। अब शादी ब्याह में कईयों के घर में कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, तो मतलब रिलीजन वो उनका ये टीच करता है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये चीज मानी जाएगी, सिखों में ये मानी जाएगी। और आप इधर साउथ वगैरह में चले जाओ, वहाँ के जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं वेडिंग के, वो डिफरेंट हैं। रिलीजियस उनके वो जो हैं ट्रेडिशंस हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। लैंग्वेज के ऊपर हमारा ये डील करता है। कॉमन फैक्टर हमारा ऑक्यूपेशन है, रिलीजन है, लैंग्वेज है। Yes, ma'am. हर एक पर्सन की आप देख रहे हो कि लैंग्वेज है, वो जो नेटिव है उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है। इट मीन्स लैंग्वेज डिफरेंट है तो हमारे कल्चर्स भी डिफरेंट हैं। अब मराठी लोग हैं, उनके अलग कल्चर्स हैं। वैसे हम ऑल तो हम क्या है, हिंदू हैं, मगर कल्चर तो हमारे डिफरेंट है ना, ट्रेडिशन तो हमारे डिफरेंट है ना। हर एक फैमिली में आप देखोगे हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स डिफरेंट हैं, इवन दो वी आर ऑफ हिंदू फैमिली। Yes, ma'am. तो यही है, आगे है, इन 19th सेंचुरी इट इज कंसिडर्ड एज डेड कल्चर। After 19th century, it became into existence. It becomes alive and vibrant after 19th century. आगे आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन ही चल रही है,
इट इज नॉट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब होता है? RATION। Rationality means reason. यस, रीजन करना किसी को कि ऐसे क्यों हुआ। तर्क वितर्क मतलब हमारा Yes, ma'am. साइंस। तो ये इसमें हमारा कुछ साइंस के फैक्ट्स एंड फिगर से हम डील नहीं करते हैं। इसमें हमारा अपना ही हमारे मिथ्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, हमारी स्टोरीज हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम्स हैं। हर एक फैमिली के अपने कस्टम्स हैं, वो हमें उनका वो तो नहीं पता ना पीछे से कब से वो चले आ रहे हैं। बस ये कहते Yes, हैं कि हमारे घर में ये रिवाज है, हम तो ऐसे ही चलते हैं। yes. अभी हम आगे और डिटेल में जाएंगे। सो आगे लिखेंगे, इट इज डीपली कनेक्टेड टू, इट इज डीपली कनेक्टेड टू नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे जो कस्टम्स है, हमारा जो फोक लिटरेचर है, वो सारा का सार हमारा जो डील कर रहा है वो नेचर के साथ कर रहा है। नेचर में वो क्या कह रहा है कि जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं। नेचर में अब अपना सारा फ्लोरा एंड फौना ले रहे हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, स्पीशीज, वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये आप लिखेंगे, इट इज डीपली कनेक्टेड टू नेचर। Nature. आगे आपको मैं एग्जांपल दूंगी, इसका चौसर का प्रीफेस टू कैंटरबरी टेल्स है। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो वो एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो एनिमल्स है ना वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये Yes. हमारा क्या है, एक फोक लिटरेचर के अंदर ही आ जाता है ये कंसेप्ट। मतलब हमारा डीपली कनेक्शन इसमें क्या है, नेचर के साथ है। जिसमें आप देखोगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो एनिमल्स के वो ह्यूमन बींग्स के साथ स्पीक कर रहे हैं, वो एनिमल्स के साथ स्पीक कर रहे हैं। हम जैसे कहेंगे कि पेड़ चल रहा है, हम कैसे कहते हैं कि पेड़ों को मत काटो। तो उनकी हमने जब कुछ ड्राइंग या पेंटिंग बना रखी होती है पेड़ों की, तो हमने उनके हैंड्स भी बना रखे होते हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पर अपने नेचर को एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करते हैं। Yes. आपने ये सुना होगा सुष्मिता, ये बिश्नोई कम्युनिटी, Yes, ma'am. हाँ, दे आर कंसिडर्ड एज पैगन्स। डू यू नो द Yes. टर्म PAGAN? Yes, ma'am. इसको क्या कहते हैं हम, पैगन को? दोज हु आर, ये हमारी पैगन टर्म वर्ड्सवर्थ की पोयम है। Yes, ma'am. हाँ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वहां से है। Ma'am. तो जो आपने सुना होगा, हाँ, बिश्नोई कम्युनिटी इज फाउंड इन राजस्थान। Yes, ma'am. ये लोग क्या करते हैं, दे आर पैगन्स। तो ये ना नेचर को Ma'am. वर्शिप करते हैं, Yes. दे वर्शिप नेचर, दे बिलीव Yes. इन प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स, दे डोंट बिलीव इन सिंगल गॉड। वो क्या कहते हैं कि जो हर एक नेचर का एस्पेक्ट है ना, उसी में भगवान है। तो वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा फोक लिटरेचर है वो डीपली कनेक्टेड है हमारा नेचर के साथ, जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर की तरह प्लांट्स एंड ट्रीज की तरह बिहेव कर रहे हैं, और प्लांट्स एंड ट्रीज एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमारा पूरा फ्लोरा एंड फौना हम लेकर चलते हैं इसमें अपना फोक लिटरेचर में। Yes, अब मैंने ma'am. आपको यही बोला था, जब हम फसल काटते हैं तो हम गीत गाते हैं, हम चावल वगैरह बनाते हैं उस दिन येलो कलर के। इस तरह का हर एक फैमिली में अलग अलग कस्टम होता है, हर एक फैमिली में हर एक ट्रेडिशन होता है। Yes, तो ma'am. वो हम नेचर के साथ ही अपने आप को वो कर रहे हैं ना, लिंक कर रहे हैं ना। Yes, ma'am. ठीक है ना। आगे है, Yes. इट बिलोंग्स टू, ये हम बात पहले भी लिख चुके हैं, लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में हम रूरल आ गया, हमारा पीसेंट फॉक आ गया। वी आर नॉट डीलिंग हियर विद एलिट हैं। अब हम देखते हैं कि जो बिहारी लोग हैं उनकी जो वेडिंग्स होती है उनके अलग गीत होते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल किसी और तरह का होता है, वो अलग अपने गीत गाते हैं अपनी शादियों में। राजस्थान का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ऑफ मैरिजेस, ऑफ हैविंग डिफरेंट Yes. ऑक्यूपेशन। कुछ पूजा करनी है, कुछ नया कारोबार खोलना है, तो हर एक बंदे का अपने गीत, संगीत, ट्रेडिशन, कस्टम सब कुछ अलग है। ये हमारा जो कंसेप्ट है, इट डील विद, इट इज एन ओल्ड फैशन कंसेप्ट। ये लिखेंगे आप, ओल्ड फैशन कंसेप्ट है हमारा, एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड।
तो हेयर वी आर नॉट डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे क्या चल रहे हैं रिवाज, रीति रिवाज, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं इसमें। ये हमारा सदियों से जो हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं। फॉक का मतलब ही हो गया हमारे लोकल गीत, और टेल्स का मतलब कहानियां, संगीत, लिटरेचर। फॉक का मतलब पुराना, पुराने चले आ रहे हैं। फॉक गीत, Yes, ma'am. फॉक सॉन्ग, फॉकलोर। फॉकलोर का मतलब हो गया लोकगीत। Yes, ma'am. ओल्ड फैशन्ड कंसेप्ट है एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। सो वे हेयर वी आर नॉट डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पर हम आइए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ेंगे, हम अपना एक सिंपल सा एक रीति रिवाज के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑफ डिफरेंट पीपल, ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, ऑफ डिफरेंट कल्चर। आगे है, Yes, ma'am. अब आप लिखेंगी आगे और थोड़ा सा। फोक लिटरेचर इंक्लूड, थोड़ा और हम इसके स्कोप वाइडर पे आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, फोक लिटरेचर इंक्लूड्स लेजेंड्स, लेजेंड्स LEGENDS। अब फोक लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं पूरा का पूरा। अब हम इसमें यहाँ पर शेक्सपियर नहीं है हमारे पास, हमारे पास इधर जो हमने पढ़ा था इधर रोमांटिक क्रिटिसिज्म नहीं है सारा, वो वाली एजिस नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमने पूरा का पूरा फोक लिटरेचर पढ़ना है। तो हमारे फोक लिटरेचर में क्या क्या आ जाते हैं, लेजेंड्स आ जाते हैं, LEGENDS। लेजेंड का क्या मतलब होता है, वो वाली Ma'am, कहानियां, वो वाला लिटरेचर विच डील्स विथ, ma'am, where it deals with supernatural things. नो नो नो, नॉट सुपर नेचुरल्स। सुपर नेचुरल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ये फेरी टेल्स वाली थोड़ी बातें हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है हमारे ये पैट्रियोटिक। Okay, okay. Yes, ma'am. जैसे हमारा जो शहीद भगत सिंह है वो कौन है, लेजेंड है। Okay, वीरता की yes, ma'am. कहानियां सुना दो, Yes, ma'am. वीरता के बच्चों के अंदर। अब वो आपका से बड़ा अच्छा है, देखो वो पैट्रियोटिक फीलिंग हमारे अंदर कितनी अच्छी इंस्पायर करता है। हम Yes, ma'am. होंगे कामयाब एक दिन। Yes, तो ma'am. वो क्या है, हम हर एक पर्सन के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर, इट इज इनकलकेटिंग द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। Yes, ma'am. तो ये है हमारा वीरता के किस्से, बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को सुनाना, वो वाले गीत, वो वाला लिटरेचर। तो Yes, ma'am. फोक लिटरेचर इंक्लूड्स लेजेंड्स। लेजेंड्स में आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, डील्स विद वेलर, VALOUR। वेलर का मतलब होता है बहादुरी के किस्से सुनाना, बहादुरी वाली कहानियां सुनाना, बहादुरी वाले गीत सुनाना। लेजेंड्स में हमारे फोक टेल्स भी होंगी, फोकलोर भी होगा। और लेजेंड्स का मतलब हो गया ये वाली क्वालिटी का, क्वालिटी हमारी कौन सी होगी, पैट्रियोटिक वाली। क्लियर हो गया है। वेलर Yes, से जो ma'am. डील करे, हमारी ब्रेवरी से डील करे, शिवेलरी से डील करे, CHIVALARY। शिवेलरी का मतलब हो गया बहादुरी के किस्से सुनाना, राजाओं महाराजाओं की। अब रानी लक्ष्मीबाई की अगर आपने वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो क्या है, दिस इज द लेजेंड सॉन्ग। वो Yes, हमारे ma'am. अंदर कौन सी फीलिंग इनकलकेट कर रहा है, पैट्रियोटिक फीलिंग। Yes. ठीक हो गई बात। उसके बाद है Yes, हमारी ma'am. फेबल्स, FABLES। फेबल्स का क्या मतलब होता है, Ma'am, it involves animals. बिल्कुल। एनिमल्स को हम ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाते हैं कि वो Yes. कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, उनका माइंड है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसे Yes, हम ma'am. कहेंगे फेबल्स। तो इसमें आप लिख लीजिए एग्जांपल, आपको पेपर में पूछ लें अगर व्हाट डू यू मीन बाय फेबल्स, तो अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप इसका एग्जांपल लिख सकती हैं। वी आर हैविंग चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। इसमें हमारी, देखो मैं बोल ही रही हूँ कैंटरबरी टेल्स, टेल्स का मतलब होती है कहानियां। कैंटरबरी जगह का नाम है, वो वाली कहानियां, छोटी छोटी कहानियां। ये भी हमारा किससे डील कर रहे हैं, फोक लिटरेचर डील कर रहा है, फोक से कर रहा है, फोक टेल्स कर रहा है। इट इज ऑल्सो ए फोक टेल एग्जाम्पल। इसका कैंटरबरी टेल्स है चौसर का। इसमें एक हमारी आती है नन प्रीस्ट टेल है, इसमें एक नन प्रीस्ट Yes, टेल। ma'am. इसमें हम क्या देखते हैं चौसर के कैंटरबरी टेल में, नन प्रीस्ट टेल में, कि जो एनिमल्स हैं ना वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और हमारा जो इसका मैसेज क्या है, इसका चौसर का कैंटरबरी टेल्स है, इट इज अ सटायर ऑन सोसाइटी।
that how we human beings have become animals and how animals have become human beings. तो ये हमें आपने सिर्फ एग्जांपल दे रहा है। तो हम अपना फोक लिटरेचर में इंक्लूड्स कर रहे हैं, लेजेंड्स हैं हमारे, फेबल्स हैं, फेरी टेल्स, परियों की कहानियां हो गई हमारी। आगे है हमारी माइथोलॉजिकल टेल्स, MYTHOLOGICAL, माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल वर्ड हमारा किससे बना है? मिथ से बना है। Myth. Yes, ma'am. मिथ, मिथ क्या है भाई? ये हमारे घर का रिवाज है, हमारे घर में सदियों से चला आ रहा है, ये ट्रेडिशन हमें ऑप्ट करना है। अब हमें इसके पीछे का फैक्ट एंड फिगर और रीजन नहीं पता। इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक। मिथ का मतलब होता है इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक, Yes. इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन। उसे हम कहेंगे माइथोलॉजिकल टेल्स। माइथोलॉजी का मिथ है कि बिल्ली रास्ता काट गई है, भाई हमने तो इस रास्ते जाना ही नहीं है। इस तरह के हमारे जो मिथ्स होते हैं, जो अपने आप से ही हमने बना रखे। कलर नहीं पहनना ये वाला शादी ब्याह में, शादी में हमने व्हाइट कलर के टीशर्ट नहीं वियर करना है, अगर कोई दुख का समय तो हमें व्हाइट वियर करना है। तो इस तरह के हम मिथ बना रखे हैं। अब क्लोथ्स ने क्या कर लेना है वहां पर किसी के इन वेडिंग और कुछ भी। तो ये क्या है? हमारे मिथ्स हैं। अभी हम इनकी आगे डिटेल स्टडी करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको फोक लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। फोक लिटरेचर अभी शुरू कर रहे हैं हम अपना ना, Yes, ma'am. तो क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको Yes. पता होना चाहिए। आगे है हमारा रिलीजियस टेल। रिलीजियस का मैंने आपको यही बताया है, हमारी कोई भी वेडिंग हो गया, हमारा कोई भी हमारा रिलीजन हो गया, उसके सबके ट्रेडिशन जो है हमारे डिफरेंट। रिलीजियस टेल, धार्मिक गीत जो हर शादी ब्याह पर हमारे गाए जाते हैं कि हर एक बंदे के घर में पूजा होती है सुबह, तो यही पर्टिकुलर हमारे कुल देवी जिसे हम कहते हैं, हमारी कुल देवी का यही गीत है, हम तो यही गाते हैं। रिलीजियस का मतलब हो गया हमारा एक पर्टिकुलर हमारा घर में गॉड को लेकर जो चलता है। हमारा रिलीजन हमें क्या टीच करता है, कहने का मतलब ये है। रिलीजन के हमारे कौन से गीत संगीत है? आपने देखा होगा वी आर हैविंग डिफरेंट रिलीजन हियर। हर एक रिलीजन के अपने कोई ना कोई गीत है, हर एक बंदा अपना अपना कुछ गा रहा है, मगर सबकी बात तो ऊपर वाले के पास पहुंच रही है। सिख धर्म में अपना कुछ वो बानी वगैरह गा रहे हैं, हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कोई आरती गा रहे हैं। तो इस तरह से सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. आगे है फोक लिटरेचर कीप्स इवॉल्विंग, EVOLVING। इवॉल्विंग का क्या मतलब होता है? डेवलपिंग। ये स्टेटिक नहीं है, मूव कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। प्रोग्रेसिंग, अडेप्टिंग। अडेप्टिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को अडेप्ट कर लेना, किसी चीज को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लेना, फॉलो कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं? इनको अपनी लाइफ में इम्बाइब कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। रीओरिएंटिंग, कुछ अगर इसमें घिसा पिटा कुछ हो चुका है तो हम उसको और मॉडर्न वे में अच्छा सा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा ये जो आते हैं कुछ वेडिंग वगैरह के कुछ गीत वगैरह गाए जाते हैं, तो आजकल तो देखोगे टीवी पे उसको कितना मॉडर्न स्टाइल में गाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब करवा चौथ का जो वो गाना सब जो मतलब जो लेडीज गाती हैं, तो उसको टीवी पे मोबाइल में हम देखते हैं, मतलब कितने अच्छे से वो उसको रीओरिएंट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है उसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं हम, उसको अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर, उसको मॉडर्न वो वे के साथ हम उसको थोड़ा सा इवॉल्व कर रहे हैं। भोला वगैरह है, शिव शिव शंभू, वो कितना मॉडर्न है, समझ रही हो तुम? जिसमें वो अपना Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ पीपल, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, हम उसको थोड़ा इवॉल्व कर देते हैं, रीओरिएंट कर देते हैं। समझ गए ना? अब आगे हम देखते Yes, हो कि ma'am. हमारे भगवानों के जो गाने हैं वो कितने मॉडर्न हो गए हैं। अब आजकल गाने भी हमारे मॉडर्न हो गए। तुमने संगीत बजा दी है, पुराने जमाने वाले गुलशन कुमार वाले भजन कोई नहीं सुन रहा है। आर यू गेटिंग ना? Yes, ma'am. It keeps evolving, progressing, adapting, reorienting along with dynamism.
along with the dynamism of time, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा जो उसका स्कोप है उसको वाइडर कर रहे हैं. and it meet the needs of people. जैसे कि अब हम देखते हैं कि जो हमारा फोक लिटरेचर है इट इज वर्किंग एज ए नीड और डिमांड का वो चल रहा है. अब जो हमारा है कुछ एक किसी राइटर ने एक चिल्ड्रंस टेल्स लिखी, एक छोटे बच्चों के ऊपर किताब लिखी और बच्चों के अंदर बहुत अच्छे से बच्चों ने उसको समझा, उसका मॉरल लेसन अडेप्ट किया, मतलब अच्छे से उसमें चित्र वगैरह बनाए गए, उसमें एनिमल्स को दिखाया गया कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं शोई टाइप का, जिसको बच्चे जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं. उनकी आप छोटे बच्चों की बुक्स देखो वो क्या होती हैं, एक तरह की फेबल्स टाइप नहीं होती, एक स्टोरीज टाइप नहीं होती है, टेल्स कितनी उनको अच्छा सा उनको उन्होंने रिकवर कर रखा होता है. तो अगर किसी Yes, बंदे ने किसी चिल्ड्रन स्टेट लिखी है तो बच्चों के अंदर जब बहुत उसको पसंद किया गया तो दोबारा से उससे कहते हैं कि तुम इसको लिखो. तो इट मीन्स हम देखते हैं कि इसमें नीड और डिमांड का दोनों का वैसा वैसा का रोल प्रॉपर चल रहा है. जब डिमांड होगी तो उसके नीचे लिटरेचर जो है हमारा मार्केट में आएगा. yes, ma'am. तो इसमें हम लिखेंगे इट इज पीपल्स लिटरेचर, लोगों का लिटरेचर है ये. इट इमर्जेस आउट ऑफ पीपल्स डिजायर. डिजायर का क्या मतलब है, इच्छा. इट इमर्जेस आउट ऑफ पीपल्स डिजायर, एस्पिरेशन, एक्सपीरियंस. लोगों की कुछ इच्छा थी, एस्पिरेशन थी. कहते नहीं हम अपना वो कहते हैं कि शादी में ये वाला संगीत बजवाएंगे, डोली के समय ये वाला बजना चाहिए, इस तरह से आजकल और भी आ गए हैं. जैसे शादी पे आप देखते हो कि वो फोकलोर से गाजुद्दीन निशागनाद आया, इस तरह का. तो ये क्या है हमारा सारा फोक लिटरेचर ही तो है, फोकलोर ही तो है हमारा. जो लोगों की डिजायर्स को, उनकी एस्पिरेशंस को, उनके एक्सपीरियंस को. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक इम्पल्स. एस्थेटिक का मतलब मैंने आपको बता रखा है, आपको पता है जी. Yes, हमने ma'am. जब हाँ बताओ. Ma'am, ये it हम means the beauty of something. हाँ आर्ट फॉर आर्ट सेक. जो ब्यूटी Yes, है ना वो ब्यूटी जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजों के अच्छे लोगों के लिए नहीं होती है. मतलब आर्ट को आर्टिस्टिक बंदा ही एडमायर कर सकता है. आर्ट फॉर आर्ट, एस्थेटिक इम्पल्स. it is related to people's life and experience. In short we can say it is related to people's life and experience. आगे है हमारा इंडिया ऑक्यूपाइज स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ फोक लिटरेचर. अब हम अपने इंडिया पे आ गए हैं. अब आपको वहां पर सुष्मिता कोई भी आंसर वहां पर लिखना होगा ना, आपने जरूर अपनी इसकी डेफिनेशन नहीं देनी है. अगर एग्जामिनर आपसे भी पूछ रहे, एजेंट पूछ रहे, तो आपने शुरू अपना करना है कि फोकलोर हमारा फोक लिटरेचर क्या है, फोक लिटरेचर yes, में ma'am. क्या क्या हम लेते हैं. यहाँ से आप अपना डेफिनेशन देंगे सबसे पहले. फोक लिटरेचर में ही तो हमारा मैथमेटिकल टेल्स आती है ना, रिलीजियस टेल्स आती है ना, फेबल्स आती हैं, लेजेंड्स आते हैं, हमारे मिथ्स आते हैं. तो इंडिया ऑक्यूपाइज स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ फोक लिटरेचर. हमारे दो बहुत बड़े बड़े इंडिया के वो हो रखे हैं जिन्होंने इंडियन के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन फोकलॉर, इंडियन फोक लिटरेचर के ऊपर काम किया है. आप लिख लीजिए. सबसे पहले है हमारा नाम मैक्स मुलर, MAXMULLER, मैक्स मुलर. मैक्स मुलर का वर्क था, आप लिखेंगे उसका नाम, ये जरूर आपने मेंशन करना ही करना है. मैक्स ma'am. मुलर्स वर्क ऑन इंडियन मिथ. इन्होंने किस पे मिथ काम किया था, इंडियन मिथ्स के ऊपर.
जो लोगों ने अपने मिथ्स बना रखे हैं, अपने टैबूज बना रखे हैं कि लड़कियों को तो भाई ऐसे ही बिहेव करना है, उन्होंने तो ऐसे ही अपना ड्रेसिंग स्टाइल रखना है, उन्होंने तो घर में ऐसे ही रहना है, ये चीज कब करनी है, ये चीज कब नहीं करनी है, वेडिंग में क्या करना है, सब कुछ। तो मैक्स मुलर का वर्क है ऑन इंडियन मिथ्स, और हमारा एक और हुए हैं हमारे थियोडर बेनफे, स्पेलिंग लिख लीजिए, THEODRE, थियोडर बेनफे, BENFEY। थियोडर ने किस पर काम किया है, ट्रांसलेट पंचतंत्र स्टोरीज, जो पंचतंत्र की कहानियां थी ना, उन्होंने उनको लिखी तो किसी और लैंग्वेज में गई थी। और हमारा जो फोक लिटरेचर है, हमारा फोक लिटरेचर है, उसमें हम क्या करते हैं, ये हम अपना हर एक लैंग्वेज में उसको अपना वो कर सकते हैं। अब हमारा जो ये हमने पढ़ा था, अपना सारा एरिस्टोटल का वर्क था, जो भी हमारा होरेस वगैरह का हमने पढ़ा है, वो कहाँ है हमारे पास, जो अवेलेबल है वो इंग्लिश में है। मगर जो हमारा ये वाला है, ये हमारा रीजनल लैंग्वेज में भी हमारे पास फोक लिटरेचर हमारा अवेलेबल है। आगे लिखेंगे आप, it deals with the emotional and intellectual level। हमारे इमोशंस, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर हम इसमें अपना डील करते हैं। इमोशंस का क्या मतलब हो गया कि भाई अगर हम ये वाला गीत नहीं गाएंगे ना, हम अगर ये वाला अपना जो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे ना, हमारा तो कोई काम पूरा सक्सेसफुल होगा ही नहीं होगा। तो इट मीन्स हमारा फोक लिटरेचर में जो हमारे फोक टेल्स हैं, हमारे फोक स्टोरीज हैं, हमारी फोक पोएट्री है, वो किससे डील करता है, लोगों की इमोशन के साथ। मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी हम अपने शादी ब्याह में गीत गा रहे हैं, साउथ के अलग गीत हैं, राजस्थान के अलग गीत हैं, हम हिंदुओं के अलग गीत हैं, वो किससे डील करते हैं, हमारी इमोशंस के साथ, सदियों से चले आ रहे हैं। नहीं जी नहीं, हमने ये गाना ही है। अब करवा चौथ पर वो कुछ गीत लेडीज गाती हैं, तो वो हर एक कस्टम है कि इट इज संग, ये गाया ही जाएगा। अगर हम ये नहीं गाएंगे तो हमारा फुलफिल नहीं होगा हमारा फास्ट। हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से हम इसे डील करते हैं, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल अपील। इट इज अ जर्नी जो हमें कहां पर लेकर आती है, इट इज अ जर्नी इट डील्स विद आवर एग्जिस्टेंस, कि हमको कैसे रहना है समाज में, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे कस्टम्स, हमारा फोक लिटरेचर हमारा डिसाइड करता है। एग्जिस्टेंस का मतलब है हाउ टू लिव। जो हमारा फोक लिटरेचर है, हम लोगों की नीड्स और डिमांड्स को ही तो फुलफिल करता है ये। प्रिजर्वेशन, कैसे हमने अपने कल्चर को बचा कर रखना है, एनरिच कर कर रखना है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचा कर रखना। कंजर्वेशन, कंजर्व करना, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन बन चुके हैं उनको बचाकर अपनी आने वाली जनरेशन तक पहुंचाना। और हमारा इसमें है वी डील विद रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। इसमें हमारा रिलेशन दिखाया गया है ह्यूमन बींग्स का नेचर के साथ। ह्यूमन बींग्स का रिलेशन जो दिखाया गया है हमारा नेचर के साथ, वो हमें कहाँ से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ फेबल्स, विद द हेल्प ऑफ टेल्स, विद द हेल्प ऑफ लेजेंड्स, वी कम टू नो। आगे है जो हमारा ये फोक लिटरेचर है, अब ये कैसे पता चलता है, इट स्प्रेड फ्रॉम माउथ टू माउथ एंड जनरेशन टू जनरेशन।
अब फोक लिटरेचर है हमारा, अब हमारे जो ये है हमारे एपिक्स हैं, हमारे रामायणा है, हमारे महाभारत हैं, और हम यहाँ पर अब एक कलयुग में हम रह रहे हैं। वो हमें कहाँ से पता चली है स्टोरीज? वो क्या है, Elders. वो कहानियां पहले किसी ने किसी को सुनाई, फिर उसने किसी और को सुनाई। तो हमारा जो ये कल्चर है ना, माउथ टू माउथ, मतलब मैंने कुछ स्टोरी अपने दादा दादी से, मेरे मम्मी पापा ने सुनी, उन मम्मी पापा ने मुझे सुनाई, मैं अपने अपनी आने वाले जनरेशन को सुनाऊंगी। तो वो क्या हो रही है, वो फोकलोर ही तो है, हमारा फोक लिटरेचर ही तो है। फ्रॉम माउथ टू माउथ हम उसे स्प्रेड कर रहे हैं। Yes, ma'am. We are not having here Sita, we are not having here Ram, we are not having here Hanuman ji right now। ये द्वापर और त्रेता युग की बातें हैं, और ये हमें कैसे पता चलती हैं? माउथ टू माउथ ये बताई गई, जनरेशन टू जनरेशन इसे पास किया जाता है। हम कहते नहीं कि पार्वती माता ने भी यही वाला व्रत किया था, तो हमें तीज का हम कहते हैं कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। Yes, उस वाली युग की बात हमें अब कहाँ से पता चल रही है? माउथ टू माउथ, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इसे बताया गया। देन वी केम टू नो अबाउट अवर फोक लिटरेचर। वो क्या है हमारा फोक लिटरेचर? तो है फॉकटेल ही तो है हमारी, जो हम अब तीज का जो फास्ट आने वाला है विद इन 4 और 5 डेज, हिंदू वुमेन उसको काफी, हमारे हरियाणा का फेस्टिवल है बहुत बड़ा। yes, ma'am. तो वो क्या है, यही तो है हमारा। कहाँ से पता चला है हमारा? इट कम्स फ्रॉम माउथ टू माउथ, जनरेशन टू जनरेशन हमें बताया गया है। आगे है हमारा, इसमें हमारे करेक्टर्स होते हैं। वी आर हैविंग हेयर करेक्टर्स बोथ गुड एंड इविल। तो हमारी सोसाइटी के साथ डील कर रहा है। हमारी सोसाइटी में हर एक तरह का बंदा है, गुड भी है, बैड भी है, इविल भी है। इसमें हमारा जो करेक्टर्स हैं हमें अवेयर करते हैं हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ब्रेवरी के बारे में, हमारे कस्टम्स के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारे लेजेंड्स के बारे में, हमारे मिथ्स के बारे में, हमारे एपिक्स के बारे में, हमारे फेबल्स के बारे में। जो करेक्टर्स हैं जो हमारे, उनसे ही तो हमको पता चलता है ना। Yes, वी आर ma'am. हैविंग प्रोटोगनिस्ट ना, मेल और फीमेल दोनों। अब हम कहते हैं कि श्रवण कुमार था, अब हमें तो नहीं पता ना वो कैसे था, हमने उसकी स्टोरी सुनी, Yes, ma'am. वी हर्ड फॉकटेल अबाउट हिम। तो अब हम क्या कहते हैं कि श्रवण जैसा बेटा होना चाहिए। एक्चुअली हम हमें नहीं पता उस टाइम क्या हुआ। कुछ एक मोड ऑफ लैंग्वेज, टोन, उन्होंने अगर हिंदी में सुनी है तो शायद उन्होंने मुझे इंग्लिश में सुनाई है, मैं अपनी आने वाली जनरेशन को कोई और लैंग्वेज में सुनाऊंगी। तो क्या है, वो वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये हम आगे अपना आगे आएंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। तो समझ रही हो ना तुम? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। No, ma'am. ठीक है। आगे है हमारा, आप देखोगे इंडिया हैज अ यूनिक कल्चर of oldest tradition which has been a source of oral tradition। The richness and variety of Indian folktales have the potential of inspiring such stories। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा इतना बड़ा, हमारा डाइवर्स हमारा वो है, कंट्री है। तो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारा folktale का जो हमारा लिटरेचर है ना, बहुत ज्यादा वो एक एनरिच है, कोई छोटा मोटा नहीं है हमारा फोक लिटरेचर जो हमारे पास अवेलेबल है। वी आर हैविंग वैरायटी। अब आप अकबर बीरबल की कहानियां ले लो, हमारी पंचतंत्र की कहानियां ले लो, कैंटरबरी टेल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये सारी हमारी क्या है, रामायण है हमारी, बाइबल है हमारी, और हमारी गीता है। वो क्या है, ये सब यही तो है, हमारे फोकटेल्स ही तो हैं, Yes, ma'am. फोक एपिक जिसे हम कह रहे हैं। अब जो रामायण की जो रेलेवेंस है और गीता की जो रेलेवेंस है, वो यूनिवर्सल अपील है उसकी।
अब हमने अपनी लैंग्वेज में समझाना हो, आपको समझाना हो, अपनी कमिंग जनरेशन को समझाना हो, हम अपनी लैंग्वेज हिंदी का यूज करेंगे, इंग्लिश का यूज करेंगे, मगर वही हमारे उस मैसेज को जो मराठी लोगों को समझाना है तो कौन सी लैंग्वेज अपने बच्चों को यूज करेंगे, मराठी यूज करेंगे। तो मैसेज तो सेम है ना, यूनिवर्सल अपील तो सेम है ना, Yes. लिटरेचर तो हमारा वही वाला है ना, रामायणा वाला ही है ना, Yes, ma'am. गीता वाला ही है ना, मतलब चीज तो वही है, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको वेरी कर लिया, हमने ट्विस्ट कर दी है चीजें और हमने अपने मॉरल लेसन को अपने अकॉर्डिंग ढाल दिया है। अब द्रौपदी का जो वो हुआ था, उसकी मॉडेस्टी को जब आउटरीच किया गया था, तो कुछ एक लोग क्या कहते हैं कि मेल लोगों को उन्होंने वो बताया कि उन्होंने बहुत गलत किया। अब कई लोगों ने बताया कि उसने भी ऐसा किया था, वो हंसी थी दुर्योधन के ऊपर, दैट्स व्हाई द बिग बैटल वाज फॉट। तो क्या है वो, हर एक फॉकटेल है, अपने अपने विचार हैं, सुना है हम सबने, तो भाई हम तो ये बता रहे हैं, हर एक Yes. बंदे की अपनी अपनी वो है, परसेप्शंस हैं, आइडियाज हैं, Yes. इस तरह से हम कहेंगे इसे। तो ये तो जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, एक ओवरव्यू बताया है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ जाते हैं। आप थोड़ा सा इसको देख लो, मैं 2-3 मिनट में स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है सुष्मिता? तो ठीक है प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। ओके सुष्मिता, कैन वी स्टार्ट नाउ? Yes, ma'am. सुष्मिता, Yes, ma'am. so this Yes, is ma'am. about the meaning, origin, definition of population. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, यही है वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप थोड़ा सुन ही लीजिए। folk literature, characteristics of folk literature. So folk literature includes all the myths, legends, epics, fables, folk tales passed down by word of mouth throughout the generations. वही बात है, folk literature हमारा क्या होते हैं, myths होते हैं, legends होते हैं, epics होते हैं, fables होते हैं, folk tales होते हैं, जिसको हम अपनी generation to generation through the medium of mouth हम उसको ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। क्लियर हो गई बात? उसे ही हम लिटरेचर कहते हैं। क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, folktales regardless of its place of origin seems clarity and have arisen to meet a variety of human beings.
कहने का क्या मतलब है, इसमें हमारा यही नहीं है कि हमने एक ही प्लेस के साथ स्विच रहना है, एक ही प्लेस के साथ हमने फिक्स रहना है। हमारे प्लेस ऑफ ओरिजिन के साथ हमने इसका कुछ नहीं लेना देना देना है। जो हमारा फोक लिटरेचर है ना, वो हर पल वो हमारा हर एक स्टेट का हर एक कम्युनिटी का डिफरेंट है। हम कम्युनिटी का लेकर चलते हैं, स्मॉलर टर्म है हमारी, Yes, ma'am. सबका डिफरेंट है कम्युनिटी का हमारा। हम हिंदूज का एक हमारा जो लिटरेचर है, हमारा ट्रेडिशन है हमारे हिंदूज के, वो डिफरेंट है। Yes, इट ma'am. सीम्स टू हैव अराइजन टू मीट अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन नीड्स। हम लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमने अपने रीति रिवाज बनाए हो। अब आपने सुना होगा कभी, कुछ एक लोगों की लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं, उनकी लाइफ में बहुत सैडनेस हो जाती है, तो भगवान ने क्या बनाए हैं, फेस्टिवल्स बनाए हैं हम लोगों के लिए। दिवाली बनाई है, दुशहरा बनाए हैं। वो किस लिए बनाए हैं? कि हम हर एक पर्सन उसमें फील जॉय। वो भी कुछ हंस ले। अब हर टाइम तो बंदा रो धो नहीं सकता है ना, व्हेन सम कैलेमिटी अकर्ड। तो वो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो किस लिए बने हैं? हमें हम खुश करने के लिए बने हैं, भगवान ने बनाए हैं, और हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपनी कस्टम्स को, अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, विच ब्रिंग्स अलाइवनेस, विच ब्रिंग्स वाइब्रेंट इन आवर लाइफ। जो हमारी लाइफ में खुशियां लेकर आते हैं, हमारे फेस्टिवल्स को साथ। फेस्टिवल्स में क्या होते हैं? हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे फोकलोर होता है, हमारा फोक लिटरेचर ही तो होता है, हमारी फोक टेल्स ही तो होती हैं, उसमें हमारे गीत होते हैं। अब देखो, इट वेरीज। दिवाली की पूजा करने के अलग है, कोई लक्ष्मी पूजा इस ढंग से करता है, कोई इस ढंग से करता है। वो किस लिए होते हैं? हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम्स हैं। अब हमारा जो तीज का फेस्टिवल है वो किसके लिए, कहाँ का इंपॉर्टेंट है, कहाँ का फेस्टिवल है? हमारे हरियाणा का ही है ना। Yes, ma'am. फोकटेल की फोक लिटरेचर हमारा कहाँ का है? ये लेजेंड का है, हमारे हरियाणा का है। Yes. और अब पंजाब के जो फोक टेल्स है, जो फोक गीत हैं, वो डिफरेंट हैं। जो वो गाए जाते हैं फोकलोर्स ऑन द ओकेजन ऑफ देयर हार्वेस्टिंग, वो डिफरेंट है, हमारे हरियाणा के डिफरेंट हैं। जब हमारी हार्वेस्टिंग पर फोकलोर गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं। आगे है फोक लिटरेचर, इट हैज इमीडिएट एक्शन। तो जो हमारा फोक लिटरेचर है ना, वो डेड नहीं है, इट इमीडिएटली इवॉल्व्स। हम कुछ ना कुछ इसमें हरकत करते हैं। इजिली अंडरस्टैंडेबल, रेकरिंग फीचर्स, फैंटेसीज, फैंटेसी वाले हमारे फैंटास्टिक इसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं, फैंटेसी वाले। और इसमें हम क्या होते हैं, हमारी जो एंडिंग होती है ना, बड़ी हैप्पी सी होती है फोक लिटरेचर की। मतलब हमारी लाइफ में खुशियां लेकर आता है, एक्शन लेकर आता है। हर एक बंदे का जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो उसकी समझ, उसको पता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इजिली अंडरस्टैंड का मतलब है हमें पता है हमारे जो रीति रिवाज है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, दूसरे पर्सन को शायद वो ना पता हो। फोक लिटरेचर इमर्जेस desires, aspirations, creativity and aesthetic impulse related to people's life and experience। इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारा फोक लिटरेचर होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, स्ट्रगल दिखाई जाती है एक नॉर्मल मैन की, कोई किंग की, कोई पीपल की, कोई क्वीन की। मतलब हम लोगों की लाइफ के साथ ही रिलेशन है इसका, फोक लिटरेचर का। अब मैंने आपको पैट्रियोटिक वाली वो जो बताया था रानी लक्ष्मीबाई का, अगर मैं आपको कोई उसकी कोई आपको लेजेंडरी सॉन्ग अगर उसका सुनाती हूँ, कोई फोकलोर सुनाती हूँ, तो उससे हम क्या सीखेंगे? कुछ हमारे अंदर फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म वाली डेवलप होगी ना। तो हमें एक मैसेज देता है। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि कैसे वो मतलब कैसे वो हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया गया, अपने ही उसमें खिलाफ हो गए। फिर उसमें स्ट्रगल दिखाई गई है कॉमन मैन की, एक कॉमन क्वीन की, एंड हाउ शी गॉट सक्सेसफुल, कितनी सक्सेसफुल हुई। इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल जर्नी है, रीजन एंड रैशनैलिटी, इश्यूज ऑफ एग्जिस्टेंस, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर हम डील करते हैं। आगे है हमारा एल्यूजन टू माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल इवेंट्स हम लेते हैं इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स होंगे इसमें। कल्चरल बिलीफ्स, कि हमारे
कल्चरल बिलीव्स का मतलब हो गया हमारे कुछ एक धारणाएं चली आ रही हैं। बिलीव्स का मतलब होते हैं हमारी अपनी मान्यताएं, मिथ्स एटसेट्रा। इसमें हमारे रिलीजियस एल्यूजन है। एल्यूजन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को इन्वॉल्व कर लेना। रिलीजियस एल्यूजन्स, रिलीजियस का मतलब हो गया धार्मिक, रिलेटेड टू गॉड। इसमें हम क्या दिखाते हैं? गॉड को एक हीरो की तरह दिखाते हैं। आगे है हमारा, इसमें करेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था उस टाइम। करेक्टर्स, वी आर हैविंग करेक्टर्स बोथ गुड एंड इविल। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें हमारे मेल करेक्टर्स हैं उनके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो राइट डाउन, मेल करेक्टर शुड बी यंग, ऑनरेबल। अब अकबर बीरबल की जो कहानियां हैं उसमें क्या है, हम दिखाते हैं कि एक बार एक राजा होता था, वो इस तरह का होता था, क्वीन होती थी, उसके अंदर ये क्वालिटीज होती थी। और ये जो कहानी किससे डील करती है? हमारे पास्ट से डील करती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बिग कासल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर। तो मतलब पास्ट से डील कर रही है। मेल कैरेक्टर्स की क्वालिटीज बता रही थी मैं आपको, उसमें आप लिखेंगे ही शुड बी यंग, ही शुड बी ऑनरेबल, he should be courageous, he should be unselfish, he should be caring, फीमेल की आप क्या लिखेंगे? she should also be young, fair complexion, caring, unselfishness। मतलब वही बातें हो गई। मतलब जो हमारे इसमें करेक्टर्स हैं वो हमें इंस्पायर करें, इस तरह के हमारे करेक्टर्स होने चाहिए। और हमारी कहानियां होगी जैसे अकबर बीरबल की होगी, तेनालीराम की होगी, मतलब इस तरह की जो हमारी टेल्स है ना उसमें करेक्टर्स होने चाहिए। और जो हमारा फोक लिटरेचर है, इट डील्स विथ कलेक्टिवनेस। Yes, ma'am. कलेक्टिवनेस, कलेक्टिवनेस का मतलब बेटा, Can you repeat, ma'am, please? कलेक्टिवनेस, कलेक्टिवनेस। Ma'am, selectiveness means to select something on basis of some specific characteristics. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिवनेस। कलेक्टिवनेस, Collectiveness. CO, यस यस, कलेक्टिवनेस। Okay, yes. Ma'am, it linked to the collection. इट लिंक्स टू कनेक्ट 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 कलेक्शन। मतलब हमारी जो बिखरी चीजें हैं ना हम उनको असेंबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा कोई फॉक लोर बन जाएगा, हमारी फॉक टेल बन जाएगी, हमारा फॉक लिटरेचर बन जाएगा, उसे हम कह रहे हैं। तो इसमें जो हमारी अप्रोच है ना वो कलेक्टिवनेस की होगी। अभी आपने देखा होगा कि ये दिवाली के बाद ये जो बिहार के जो है जो लोग हैं वो एक छठ छठ पूजा करने जाते हैं। तो उनके Yes, अंदर जो ma'am. फीलिंग है ना वो क्या है? कलेक्टिवनेस की है। वो इतनी दूर से बिहार से हमारे इधर आ रखी हैं और फिर भी वो इतनी दूर ट्रैवल कर कर वहां जाते हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एनरिच करने के लिए। उनकी जो कल्चरल बिलीफ चले आ रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, वो अपने ट्रेडिशन को करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि रिलीजियस एल्यूजन्स हैं उनके कुछ। क्या है कलेक्टिवनेस? अब हर एक जो बिहारी उस टाइम का बिरादरी है वो क्या करता है कि वो तो वहीं जा रहा है। हमारी जो मेड्स वगैरह होती हैं और भी आपने देखा होगा सब ट्रैक कर रहे होते हैं। तो क्या किससे कर रहे हैं? कलेक्टिवनेस अप्रोच का मतलब हर एक लेडी ने उनकी उस तरह से सूर्य के वो दर्शन और वगैरह करना। हमारे इधर ट्रेडिशंस, हम कलेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी से डील करती है। Ma'am, your voice is इसमें not हमारा clear. ओके वेट,
Now it deals with the values Yes, of ma'am. brotherhood. It teaches us the value of brotherhood, togetherness, and consciousness. Or here we are dealing with the relationship of human and nature. जैसे प्लांट और ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बताया था कि कहीं पे पानी की कमी है और हम क्या देख रहे हैं कि मैन Yes. और एक पानी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो पानी बोल रहा है कि मुझे बचाओ। ट्रीज को हम काट रहे हैं तो ट्रीज Yes, बोल रहा ma'am. है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसके हैंड्स हैं, उसकी लेग्स हैं कि डोंट कट मी, डोंट डू एनी टाइप ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Yes, और जो ma'am. हमारा जो ये है, जो हमारा फोक लिटरेचर है, वो किस लैंग्वेज में से हम ओरिजिनेट हुआ है? संस्कृत। एंड देन इट केम इनटू अदर लैंग्वेजेस। ये है हमारा फोक लिटरेचर के ऊपर जो सारा मैंने आपको बताया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपके हमारा क्वेश्चन बनता है थीमेटिक कंसर्न ऑफ फोक लिटरेचर। थीमेटिक एंड नरेटिव कंसर्न ऑफ फोक लिटरेचर। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, थीमेटिक एंड नरेटिव कंसर्न ऑफ फोक लिटरेचर। नरेटिव का क्या मतलब होता है? जिसमें अपनी टेक्निक्स लेकर चलते हैं कि मतलब क्या क्या डिवाइस हम यूज करते हैं अपने फोक लिटरेचर में, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, मिथ, रिलीजियस सेटिंग्स, प्लॉट, वो हम बाद में आएंगे। हम पढ़ रहे हैं थीमेटिक। थीमेटिक का क्या मतलब होता है? थीमेटिक कंसर्न। थीमेटिक Ma'am, it कंसर्न, means themes. नो, किसी चीज के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करना, थिंक करना उसके ऊपर, थीमेटिक कंसर्न। हम क्या सोचते हैं, हम क्या लेते हैं इसमें, थीमेटिक कंसर्न ऑन दिस टॉपिक। तो इसमें आप लिखेंगे, थोड़ा सा लो नोट कर लो पॉइंट थोड़े थोड़े से। Folk literature is closely related to social cultural. Folk literature is closely related to socio culture. हमारे सोसाइटी के जो कल्चर है ना, हम उनके साथ डील करते हैं। तो हेयर द स्टोरी टेलिंग इज सेंट्रल टेनेंट। जो हमारा ये फोक लिटरेचर है ना, इसमें हम जो बात अपनी बताते हैं ना, वो क्या है? स्टोरी टेलिंग के वे में बताते हैं। टेनेंट का मतलब होता है मेन बात। तो स्टोरी टेलिंग इज सेंट्रल टेनेंट हियर। इट हैज एग्जिस्टेड थ्रू स्टोरीज। हमें अपने फोक लिटरेचर के बारे में कैसे पता चलता है? कहानियों के थ्रू पता चलता है, लेजेंड्स के थ्रू पता चलता है, Yes, ma'am. पेपल्स के थ्रू पता चलता है, Yes, ma'am. फेरी टेल्स के थ्रू पता चलता है, लेजेंड्स, Yes, ma'am. और हमारे इसमें क्या होते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस होता है हमारा। कल्चरल एप्रोप्रिएशंस, हिस्ट्री, कंटेम्परेरी बिलीव्स, हमारे उस तरह समाज में क्या धारणाएं थी, हमारे बिहेवियर, हमारे लाइफ के इंसिडेंट्स। आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकती हैं। वी आर हैविंग द नॉवल ऑफ राजा राव, दैट इज कांथापुरा। Yes, ma'am. हैव यू हर्ड अबाउट दिस नॉवल? I have read, ma'am. हैव यू रेड कांथापुरा? Yes, ma'am. I have read Kantapur. तो इसमें हमारे एक नरेटर कौन है हमारा इसमें? हैव यू हर्ड अबाउट अचक्का? Yes, ma'am. इज द नरेटर ऑफ द नॉवल ना। तो हमारा इसमें जो हम डील पढ़ते हैं हमारा कांथापुरा में, जो है हमारा विलेज कौन सा है वो? इट इज रिलेटेड टू साउथ के मैसूर का विलेज है वहां पर, जिसका मेंशन Yes, ma'am. हमारे कुरानाज में नहीं है। और ये हमारा क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट है। Yes, ma'am.
क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट, क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट में हमारे और कौन आ जाते हैं, हमारे रामायण आ जाते हैं, हमारे महाभारत आ जाती हैं, उसकी कहानियां। Yes, ma'am. और ये जो हमारा होता है ना फॉक लिटरेचर, इसमें हमारा, मैंने आपको पहले ही बोला है, हमारी इसमें स्टोरी टेलिंग इन सेंट्रल है। स्टोरी सुनाई जाती है और नंबर ऑफ टाइम्स इट इज टोल्ड। एक कहानी को कितनी दफा सुनाया जाता है, जनरेशन टू जनरेशन इसे पास किया जाता है। मैंने आपको वही अभी बताया था, दादी माँ पापा को सुनाया, पापा ने आपको सुना, आप जनरेशन को सुना रहे हैं, तो क्या है हमारा storytelling here is important and number of times it is told and it passed from and it, by word of mouth, मुंह Yes. के द्वारा सुनाई जाती है। ले सकते हैं, उनकी स्टोरीज ले सकते हैं, उनके इंसिडेंट्स ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टोरीज हैं, इंसिडेंट्स हैं हमारे रामायण के, महाभारत के, वो इंडिया के हर एक पार्ट में सुनाए जा, हर एक पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि एक वुमेन को एक सीता की तरह बिहेव करना है, एक मैन को राम जी की तरह करना है, बेटा श्रवण कुमार की तरह होना चाहिए। हमारा महाभारत का वो इतनी बड़ी बैटल क्यों हुई, क्या रीजंस थे, तो वही बातें हमें सुनाई जा रही हैं बार बार। हमारा शिव पुराण था, उसमें कैसे मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स कौन से आए, तो ये सब हमारा सारा क्या है, हमारा फॉक लिटरेचर ही तो है। हर एक यूनिवर्सल अपील है हमारी। मैंने आपको स्टोरीज ऑफ बीरबल बताई हैं, तेनालीराम बताई हैं, उनका क्या है, जो उनका सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया मोरालिटी का लेसन हमें टीच करते हैं। अगर मैं अकबर बीरबल की आपको कहानी सुना रही हूँ तो मैं आपको उसमें से कुछ मैसेज दूंगी Yes. कि व्हाट स्टोरी taught us, what story is giving us which type of message, क्या मोरालिटी का लेसन, आपने क्या सीखा इसमें से। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा नरेटिव स्टाइल होगा। नरेटिव स्टाइल का मतलब होता है सुनाई गई इन डिफरेंट वे एंड इन डिफरेंट स्टेट। अब मैंने कहानी सुनी, अब मैंने आपको कहानी सुनाई, मैंने उसमें कुछ एक और वर्ड्स का यूज किया, वर्बोस का, वर्बोस मतलब वर्ड्स आपने यूज कर दिए, मैंने उसमें इंग्लिश की कुछ एक, मैंने कुछ और रीजनल लैंग्वेज वर्ड टर्म यूज कर ली है, तो वो क्या हमारा नरेटिव स्टाइल हमारा क्या है, तो में कहानी है, क्लास में बच्चों को कहानी है तो बच्चों के अकॉर्डिंग सुनाई जाती है। वही बात अगर हमें अपने टीचर्स वगैरह को बतानी होती है तो जो हमारा मोड ऑफ लैंग्वेज है वो थोड़ा कुछ और तरह का हो जाएगा। बात तो वही है ना सारी, Yes. मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग Yes. हम उसको ले आते हैं। हमारे कल्चर के बारे में पता चलते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे पास नंबर और कितनी मूवीज हैं, वो एक लैंग्वेज में बनती है और फिर उनको ट्रांसलेट किया जाता है। अब बाहुबली की जो Yes. मूवी थी वो कहाँ बनी थी, साउथ की मूवी, और हर एक उसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने उसको बना दिया। हिंदी में आ गई वो, Yes. इंग्लिश लैंग्वेज में आ गई, तो हर एक चीज की वो उसको उनके लोग के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के, उनकी डिमांड, उनके टेस्ट को मीट करने के लिए हम उसको किए ताकि वो भी लोग उसका मैसेज समझ सकें, क्या यूनिवर्सल अपील है। अब हम लोग जो रामायण है, महाभारत है, अपने टीवी में हिंदी में देखते हैं। अब साउथ में आप चले जाओ, वही रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश में किया गया है, महाराष्ट्र में से मराठी में किया गया है। सीरियल्स हमारे पास आते हैं, यहाँ पर हिंदी में आते हैं, वहाँ पर मराठी में आते हैं, वही बात है, वही कहानियां हैं, ताकि जो नेटिव्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सके, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। सोशियो कल्चर हमारे इसमें इश्यूज होते हैं, सुपरस्टिशियंस हम इसमें ले लेते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हो गए हमारे। कोई किंग की कहानी हो या किंग के हेयर के बारे में बता दिया, HEIR के बारे में, मतलब इट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। फॉक लिटरेचर है हमारा, वो क्या हमें बता रहा है, जो हम इतना रामायण महाभारत मूवीज वगैरह बनाई जाती है, वो क्या है, हमें एक ह्यूमैनिटी का लेसन दे रहे हैं। इट टीचेस अस समथिंग, इट टीचेस अस द वे, इट टीचेस अस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, Yes. it moderates our thought, it builds our intellectual level, it satisfies our emotional needs, it fulfills our desires,
इट फुलफिल्स आवर एस्पिरेशन। मतलब प्रॉब्लम हमें रियल लाइफ की बताते हैं, फिर सिचुएशन हमें उसकी फिर हमें बताएंगे कि वो कैसे प्रॉब्लम को रेजोल्यूशन मिला। अब आपने देखा होगा इधर महाराणा रंजीत सिंह की कहानियां इधर पंजाब में कितने बड़े वो रह चुके हैं। तो वो क्या है, हमें एक मॉरलिटी का लेसन ही तो देते हैं। और जो हमारा ये है महाराजा रंजीत सिंह का पीछे सीरियल भी आया था, तो वो क्या है, हमें कुछ टीच कर रहा है। तो वो पहले हिंदी में आया हम लोगों के लिए, वही जो उधर साउथ में चलाया गया उसको उस लैंग्वेज में अडेप्ट किया गया। समझ रही हो ना? Yes, ma'am. हाँ। तो ये था हमारा थीमेटिक कंसर्न में आप लेंगे इसका, बस का एम ऑब्जेक्टिव वगैरह लिख देंगे। अगला है हमारा नरेटिव कंसर्न ऑफ फोक लिटरेचर। नरेटिव का क्या मतलब होता है, कैसे हमारा जो फोक लिटरेचर है वो लिखा जाता है, क्या क्या हमने उसमें चीजें लेनी है ताकि लोगों को मजा आए। The what elements, which techniques we should opt while writing folk literature, वो हम पढ़ेंगे। 1-2 मिनट में स्टार्ट करवा रही हूँ, अब इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, ठीक है? Okay. देख लो। हेलो सुष्मिता। Yes, हेलो sir. मैडम चले गए क्या? So मैम बोल के गए कि 2 मिनट में आते हैं। ओके 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 ठीक ठीक। Yes, ma'am. Sushmita, are you there? So now we are coming to narrative concern of folk literature. So you just note down the points. तो फर्स्ट इसमें हमारा एलिमेंट है, नरेटिव में अपनी टेक्निक लेंगे। फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, इन विच Ma'am, inanimate objects are, shown as human beings or living beings. बिल्कुल, in which we attribute human qualities to inanimate objects. ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन क्वालिटीज जब हम प्रदान कर दे रहे हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया पर्सन वाली क्वालिटीज को प्रोवाइड करना इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, जस्ट गिव मी एन एग्जाम्पल नाउ। फॉर Ma'am, एग्जाम्पल, for example, if we show a story like in which trees are talking, or we see, for example, if we take from movies, example from movies, we see toy stories where toys turn into humans. They get the human like qualities. in which we can say that sun is speaking to us, which I Yes, can ma'am. say to you that moon is moving। तो मूव कौन करता है? ह्यूमन बीइंग ही चलता है। मून इज मूविंग लाइक अ सैड स्टेप्स। स्टेप्स कौन लेता है? ह्यूमन बीइंग्स ही लेते हैं। Yes, ठीक हो ma'am. गई ना बात? Yes, तो ma'am. ये वाली हम अपनी टेक्निक, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है पर्सोनिफिकेशन का। इसमें हम अपने ह्यूमन बीइंग्स वाले एट्रीब्यूट्स लेकर चलते हैं, किसी भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज में हमारे हो गए, हमारे सन में, मून में, ये सब चीजें होती हैं। Yes, ma'am. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले मीन्स Uh, to exaggerating something. टू एग्जैजरेट समथिंग। वेरी गुड। एंड इट क्रिएट्स लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यंग माइंड। हाइपरबोले की टेक्निक को हम तब यूज करते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो यंग माइंड्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन है, उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। जैसे कि हमारे हो गया, हम कहें ह्यूमन, और हम इसमें कह सकते हैं ह्यूमन करेक्टर्स एंड एनिमल करेक्टर्स आर लार्जर देन लाइफ। और आप समझेंगे हाइपरबोले का मतलब होता है, हमारे पास पोयम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, हैव यू हर्ड? Yes, ma'am. बाय Yes, ma'am. बाय एंड्रयू मार्वेल। तो Yes. उसमें वो क्या है, कहता है आई विल प्रेज योर बॉडी, आई विल प्रेज योर फॉरहेड फॉर 200 ईयर्स। तो 200 ईयर्स की तो लाइफ ही नहीं होती है किसी Yes, की ma'am. भी। तो वो क्या है? वो हाइपरबोले टेक्निक तो है। Yes, ma'am. मतलब हम एग्जैजरेशन का यूज करते हैं टू क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन यंग माइंड। आगे है हमारा थर्ड, आप इसमें लिखेंगे नैरेटिव कंसर्न में, एल्यूजन टू माइथोलॉजी। एल्यूजन का क्या मतलब होता है? Ma'am, to show हाँ, some story that has linked to some other story. बिल्कुल। हम अपने कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं और हम उसमें कोई और स्टोरी का रेफरेंस लेकर आते हैं, उसे हम कहते हैं एल्यूजन। Yes. मतलब हम अपना एक मैटर में दूसरे मैटर को रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। एल्यूजन टू माइथोलॉजी। हम अपना टॉक लिटरेचर अपना लिख रहे हैं, कुछ लिटरेचर है हमारा टॉक का, तो उसमें हम अपने माइथोलॉजिकल इवेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। हमारे बिलीव्स हो गए, हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने लिख दिया कि हमारे राजा ऐसे होते थे, हमारी महारानियां ऐसी होती थी। अपने कल्चरल बिलीव्स के बारे में, मिथ्स के ऊपर, किंग के फादर के बारे में बता दिया, उसके फादर के बारे में बता दिया। फिर है हमारा इसमें एल्यूजन टू माइथोलॉजी में हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। कल्चरल बिलीव्स में आप क्या लेंगी? जैसे एग्जाम्पल Uh, Ma'am, भाई हम, cultural beliefs may be something like for example, there is a tribal community which believes in kind of monster. They believe in kind of. For example, there is the movie Kantara. यस यस, आगे। Ma'am, when somebody believe that is kind of a cultural beliefs that something exists, or this is wrong or this is right. मतलब हमारे अपने ही मान्यताएं हमारे बना ली हैं। बिलीव्स का मतलब हो गया हमारी मान्यताएं। कोई कलर के ऊपर हो गया, हमारा रेड कलर है, पॉजिटिविटी के लिए है, हम अपना ऑस्पिशियस ओकेजन में से वियर करते हैं कि नहीं हमारा तो कल्चर ही है, हम तो यही पहनेंगे।
अब मुस्लिम लोग में क्या होते हैं कि ब्लैक वगैरह को वो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, पॉजिटिविटी के लिए मानते हैं, स्ट्रेंथ के लिए मानते हैं। तो वो सब हमारे एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, कल्चरल बिलीफ्स के बीच में आ जाएंगे। अब मैंने आपको रिलीजियस इल्यूजन के बारे में भी बताया था। Yes, ma'am. रिलीजियस का मतलब होगा रिलेटेड टू गॉड, जिसमें हम अपने गॉड को एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। Yes, ma'am. हम्म हमारे करेक्टर्स हो गए, मतलब हमारे जो प्रोटोगेनिस्ट है, मेल है, फीमेल है, उसके मैंने आपको क्वालिटीज के बारे में बताया था। तो ही शुड बी लाइक दैट। Yes, ma'am. एग्जाम्पल हमारा इसमें हो जाएगा, जैसे एक वाटर प्रीस्ट की कहानियां हैं, वो हमें किसके बारे में बताते हैं, उसके करेक्टर्स हमारे क्या बता रहे हैं, एक सेक्रीफाइस की फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो करेक्टर्स जो है हमारे मेल और फीमेल होंगे, गुड और बैड क्वालिटीज के बारे में बताएंगे वो, उनकी क्वालिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। Yes, ma'am. और जो हमारी सेटिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेटिंग ऑफ एक्शन। सेटिंग कहाँ होगी हमारे प्लेस, हमारे इसका लिटरेचर की, हमारा जो भी लिखा जाएगा, स्टोरी लिखी जाएगी, सिंपल कॉटेज हो गए हमारे, मैजिकल से हो गए, जैसे आपने सुना होगा ये एलिस वंडरलैंड वगैरह जैसे होते हैं Yes, हमारे, ma'am. Yes, ma'am. उस तरह के हो गए। हाँ, मैजिकल सुपर नेचुरल हाउसेज हो गए, हॉन्टेड हाउसेज हो गए, कॉटेजेस हो गए, Yes, ma'am. किंगडम हो गया। और टाइम हमारा जो इसमें है, पास्ट से डील करते हैं, तो टाइम हेयर रेफर्ड एज पास्ट, we deeply connected with past, once upon a time there was a king, there was a lion, इस तरह से। the setting आगे है हमारा प्लॉट। हमारा जो प्लॉट होगा वो बहुत सिंपल प्लॉट होगा, स्टिमुलेटिंग होगा। लिख लीजिए आप, वी डील हेयर विथ सिंपल प्लॉट। अब मैंने आपको जो एरिस्टोटल का जो वो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारा क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स प्लॉट के ऊपर हमने दिया था कैरेक्टर्स हमारे, तो प्लॉट हमारा क्या होगा, सिंपल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स उसमें प्लॉट में काम करेंगे वो क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे। मगर इसमें क्या होगा, हमारा प्लॉट भी सिंपल होगा और हमारे कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, कहानियां भी सिंपल होगी और लीनियर कैरेक्टर्स होंगे। स्टिमुलेटिंग प्लॉट होगा हमारा, इंस्ट्रक्टिव होगा, सबको समझ आएगा, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, फिर हमारे पास इमीडिएट रेजोल्यूशन भी होगा उसका। और जो हमारा प्लॉट है वो हमें क्या मोरालिटी का लेसन देगा, लेसन हमारा हो गया एक्ट ऑफ कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया। इट टीचेस अस द वैल्यूज ऑफ कंपैशन। और हम इसमें देखेंगे विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। अब रामायणा में जो बैटल होती है जो बाद में उनके साथ हमारी, रावण लंका दहन वगैरह जो होता है, तो उसमें क्या है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल ही तो है। एक्शन स्टार्ट्स, इट कीप्स लिसनर्स अटेंटिव। मतलब एक्शन होगा तभी जो हमारे लिसनर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो अटेंटिव रहेंगे। और हमारा जो होगा, जो हमारा प्लॉट होगा, कोई भी कहानी आपको फोक लिटरेचर में या फॉकटेल दिखाई जाएगी, वो किससे शुरू होगी, मैंने आपको बताया था पास्ट से शुरू होगी, और उसमें आपको कुछ क्लाइमेक्स से भी स्टार्ट हो सकती है वो, ये भी आप लिखेंगे। क्लाइमेक्स का क्या मतलब होता है, ट्विस्ट क्रिएट कर देना, कि आप आगे स्टोरी देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाओ कि अब आगे क्या होगा। तो इट शुड स्टार्ट विथ, आवर फॉक टेल स्टार्ट विथ क्लाइमेक्स, so that audience should be kept over a long time over there. एग्जाम्पल है हमारा इसमें जटाका टेल्स हैं, JATAKA,
इसका जो प्लॉट है हमारा सिंपल है, स्टिमुलेटिंग है, एक्ट ऑफ कंपैशन के बारे में बताता है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल है, इट कीप्स लिसनर्स अटेंटिव, इट स्टार्ट्स विथ क्लाइमैक्स। आगे है हमारा स्टाइल, आगे है हमारा स्टाइल। स्टाइल में आप लिखोगे इन विच मैनर इट इज प्रेजेंटेड बिफोर व्यूअर्स, मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, सुपर नेचुरल हाउसेस हैं, क्या क्या उसमें मतलब क्या वो है, स्टाइल क्या है उसमें, किस वे से बताया जा रहा है। अगर मैं आपको कहूंगी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बिग हाउस, इट हैज अ बिग रूम्स बट एट नाइट्स इट बिकेम दिस, तो आप क्या है, ये क्लाइमेक्स से तो शुरू हो रहा है, कुछ सस्पेंस सा क्रिएट हो रहा है। तो स्टाइल का क्या मतलब हो गया, किस मैनर में सुनाई जा रही है वो। आगे है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एंड टोन। पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें हम अपना यूज करेंगे थर्ड पर्सन नरेटिव इज यूज्ड, third person point of view is used in folk literature so that our readers or listeners can connect with that. आगे है हमारी टोन एंड लैंग्वेज। टोन एंड लैंग्वेज में आपको लिखोगे टोन एंड लैंग्वेज आर यूज्ड टू पोर्ट्रे ह्यूमन स्ट्रेंथ। क्या टोन है, एक ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है, उसकी वीकनेसेस के बारे में बता रहा है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल है आपका एन ascetic रिटर्न होम, सो जो हमारा टोन है, जो लैंग्वेज है, वो हमारे लिटरेचर को क्या नया एक वो शेप देता है, इट ब्रिंग्स न्यू इंसाइट टू रीडर्स, and showed the passage of courage, bravery, human strength, victory of good over evil। तो ये है हमारा इसमें सारा फोक लिटरेचर का। आई होप यू गॉट एन आइडिया। Yes, ma'am. कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो आप। No, ma'am. तो इसमें हमारा डेफिनेशन we did characteristics, we did thematic concern, we did about the narrative technique of folk literature। So have you made notes? Yes, ma'am. के बाद हम अपना नेक्स्ट करेंगे टॉपिक मिथ के ऊपर, लेजेंड के ऊपर। टुमारो वी विल डील विद दैट, मिथ्स, लेजेंड। और फिर हमारे पास आगे है हमारा एक बैरियर एल्विन का वर्क है, इनेट विजडम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज का है, व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग बाय बैरियर एल्विन। ये हम करेंगे एक हमने करना है ओरल एपिक्स इन इंडिया बाय स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न। ये इम्पोर्टेंट है जो हम करेंगे ये दोनों भी। और है हमारे पास ओरल एपिक की हमारी कैटेगरीज कौन सी होती हैं, एक है रामानुजन के ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, we deal with narrative poems also, we deal with paintings also of tribals। तो ये हमारा कल थोड़ा छोटा छोटा काम हमारा ये रहेगा। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दी है, कुछ प्रॉब्लम है कुछ पूछ लीजिए आपको। सुष्मिता आर No, यू ma'am. हैविंग? No, ma'am. तो कंक्लूड करें फिर आज का लेक्चर, फिर कल करेंगे बाकी, Yes, ma'am. ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। Yes, ma'am.
हेलो, Yes. हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, हो गए? हाँ जी सर, फिनिश कर रहे हैं, फिर कल करवाएंगे बाकी। ठीक वी हैव ठीक है मैम, ठीक है, ठीक कवर्ड है। इट। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू सर।